एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं दीपिका एसलिंगडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। खबरें से पहले आप सभी दर्शकों को एपेक्स न्यूज टीम से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नजीर अहमद मलिक, सबीर अहमद मिर, शबीर अहमद, एजाज अहमद भाट और बसीर अहमद। इन पर राज्य में सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा करने और उससे आगे साझा करने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये जानकारी पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स तक पहुंचाई जा रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। On the credible information, and then on 21/11 we arrested one Nazir Ahmed Malik, a resident of Kupwara, Kashmir. उसको इंट्रोगेशन करने के बाद further we got some further links, and then 2 और यहाँ ईटानगर से ही डिफरेंट लोकेशन से अरेस्ट किया। और फर्दर इंट्रोगेशन के बाद we also arrested 2 more from Kupwara, Kashmir, and on 18 we arrested them, and then they are in our custody now. The investigation is on. Further updates, if required, will provide later. अभी फिलहाल यहाँ तक हम ये करते हैं, इतना ही बता पाएगा कि यहाँ बैठ करके और elsewhere in the country they were sharing sensitive information to the handlers across the country, across the border. तो हमारा आज तक अभी तक का investigation में ये पाया कि they were actually collecting sensitive information and sharing it to the enemy country. कई सीमावर्ती गांव में इंडिया बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीधी गांव और संस्कृत गलियों के बीच से गुजरती है। कई घरों में एक कमरा भारत में है और दूसरा बांग्लादेश में। अधिकारियों का कहना है कि इसी जटिल जमीनी स्थिति के कारण फेंसिंग, बॉर्डर सर्वेलेंस और इन्फिल्ट्रेशन रोकना बहुत मुश्किल बना हुआ है। कुछ भारतीय एक्सपोर्टर्स सरकार से बांग्लादेश को चावल निर्यात पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही है, क्योंकि जमीन पर हालत बिगड़ रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ढाका के रॉ जूट एक्सपोर्ट्स बैन से भारतीय जूट मिल्स को भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश 2025 से 26 में 9 लाख टन चावल इंपोर्ट करने की योजना बना रहा है, ताकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तैयार की जा सके। Breaking news, huge. A section of Indian exporters has urged the government to ban rice exports to Bangladesh, warning that the trade environment has turned increasingly risky. Exporters point to Bangladesh's ban on raw jute exports, which has already forced Indian jute mills to cut production. They argue that continued rice exports without reciprocity weakens India's position. If a ban is not imposed, exporters say rice shipments to Bangladesh should be quoted at significantly higher prices. The demand signals growing calls for a tougher, interest-first trade stance. वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से जुड़ा एक गुप्त सुरंग मिलने का दावा किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस सुरंग का इस्तेमाल घुसपैठ और स्मगलिंग के लिए होता है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी सैकड़ों सुरंगें हो सकती है जो बॉर्डर फेंसिंग और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करती है। Fake gold smuggler at whose house the police chanced upon a secret tunnel leading to Bangladesh has been arrested. While raiding Saddam's Kultali house in connection with an assault complaint filed by a businessman, the police uncovered the secret tunnel. The tunnel, according to the police, is linked to a canal that flows into the Matla River in the Sundarbans, beyond which lies the India-Bangladesh border.
Meanwhile, Saddam's mother, Taslima Sardar, said that the police arrived to arrest her son but did not state the reason why. The mother said that Saddam had just returned home and was lying down when the police came to arrest him. কিছু বলেই নেই যে এই কারণে ধরছি বা কি করেছে। ও তো বলছে, কাঁদছে যে আমি কিচ্ছু করিনি আব্বা মা, আমি কিচ্ছু করিনি, ওরা আমার দাবড়াচ্ছে, আমার ধরছে। গুলি চালাই নেই এইটা বলতে পারবো না, কিন্তু প্রত্যেক পুলিশের হাতে বন্দুক, ওরাও বার করে সব ইয়ে করে আছে। সে এখন কোথায় আছে বলতে পারবি না। With the accused now in custody, it is to be seen if the police can land more leads on what went on inside the secret tunnel. दिल्ली पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड आरोपी को गिरफ्तार किया है जो AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके QR कोड से छेड़छाड़ करता था। नॉर्थ दिल्ली की DCP राजा बांधिया ने बताया कि 100 से ज्यादा बदले हुए QR कोड्स बरामद हुए हैं। आरोपी वेंडर्स को निशाना बनाता था। FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। उसका 1,40,000 का बिल बना, तो उसने QR कोड मांगा और उसने 1,40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए 2 ट्रांजेक्शन्स के अंदर। पर इसमें उसके अकाउंट से तो डेबिट हुआ, लेकिन जो दुकान वाले हैं उनके अकाउंट को क्रेडिट नहीं हो पाया। तो ये लगा कि उन्हें साइबर फ्रॉड है, उन्होंने रिपोर्ट किया और हम लोगों ने इस पर फिर तफ्तीश शुरू करी। तो उसकी जो पैसे गए हैं उसकी हमने मनी ट्रेल को फॉलो किया और देखा कि जिस सस्पेक्ट अकाउंट में पैसा गया है, हमने उससे व्यक्ति को ढूंढा जो जिसका ये लिंक अकाउंट और नंबर था। उसके बाद हमने जयपुर के पास चाकसू करके एक जगह है, वहाँ पे गांव में हमने रेड किया और इसको पकड़ा। ये मनीष नाम का व्यक्ति था, 19 साल इसकी उम्र थी। तो इससे जब हमने पूछताछ की और इससे जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, तब सामने आया कि इसी ने ये ठगी करी है और इसका MO इसको एक वेटैयन करके साउथ इंडियन मूवी थी, उससे इसको इंस्पिरेशन मिली कि QR कोड को चेंज करके ठगी की जा सकती है। इसने इंटरनेट के ऊपर ये अलग अलग वेंडर्स को, बिजनेसेस को, दुकानों को सर्च करता था। उसमें जो मिल जाता था उसको बोलता था कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं खरीदूंगा, ऐसा ऐसा करके बातों में फंसा के उनसे QR कोड ऑनलाइन मंगवा लेता था व्हाट्सएप। फिर उसी QR कोड को एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से, ये इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर ये टेम्पर करके वापस भेज देता था। उसमें होता क्या था, फर्म का नाम तो वही रहता था लेकिन QR कोड नीचे टेम्पर हो गया। तो जिसके पास आया है वो बहुत मोस्टली उन लोगों को लगता नहीं था कि हमारा टेम्पर हुआ है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, उनको पता नहीं होता था कि ये चेंज हो गया है। अब व्हाट्सएप पे अंदर आ गया, वो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि ऑटो सेव हो जाता है गैलरी के अंदर, तो गैलरी में वो QR कोड फोटो आ गई थी। उसके बाद जब भी कोई शॉपिंग करने आता था या कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा था जो QR कोड मांगता था, और कभी किसी ने अगर अपने फ़ोन में दिखा दिया तो ये नकली वाला QR कोड होता था, तो ये दिख जाता था। तो इससे पैसे जो है वो सीधे ट्रांजेक्शन होकर इसके मनीष के ही अकाउंट में आते थे। तो इस तरीके से इसने करीब 100 के आसपास हम लोगों को टेम्पर्ड QR कोड्स मिले हैं इसके घर। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट किया। दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पास पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोक लिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ब्रांडेड फूड और बेबी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बदलने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 4.3 करोड़ का माल जब्त किया गया है। ये सामान रिटेल स्टोर्स, मॉल्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सप्लाई होता था। पैकेट का पर्दाफाश किया है जो एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के अवैध आयात, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में हेराफेरी, फर्जी बारकोड प्रिंटिंग तथा एक्सपायर्ड उत्पादों की रीपैकेजिंग कर इन्हें देश भर में असली बताकर बेचने में संलिप्त था। इस कार्रवाई में कुल लगभग 4.3 करोड़ मूल्य के खाद्य पदार्थ व सामग्री बरामद की गई है। बरामद किए गए एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ देश भर में मुख्य रिटेल चेन, शॉपिंग मॉल,
तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जा रहे थे, जिसमें जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। विशेष रूप से बरामदगी में शिशु आहार, बेबी फूड एवं अन्य उपभोग्य वस्तुओं शामिल होना अत्यंत चिंताजनक है। इस कार्रवाई निरीक्षक मंजीत कुमार के नेतृत्व में एसीपी श्री अनिल शर्मा के पर्यवेक्षण में तथा डीसीपी श्री आदित्य गौतम के समग्र मार्गदर्शन में की गई, जिनके निर्देशन में सतत एवं खुफिया आधारित कार्रवाई पर पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। हमने 7 आदमी टोटल वहाँ मौके पर मिले, जिसमें 3 को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मास्टरमाइंड अटल जायसवाल है, 54 साल इसका एज है। बाकी 2 इसके मैनेजर हैं, शिव कुमार और विश्वजीत, और बाकी 4 आदमी को हमने बाउंड डाउन किया है, उनको अरेस्ट नहीं किया है। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जन स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा की रक्षा के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है। मिलावटी एवं एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा इस प्रकार के खतरनाक उत्पाद जनता तक न पहुंच सके, इसके लिए हमारा जो है सो कमिटमेंट है। पटियाला में एक डोमेस्टिक मेड पर आरोप है कि उसने परिवार के खाने में नींद की गोली मिला दी और फिर साथियों को रॉबरी का सिग्नल दिया। बेंगलुरु से सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे घर के मालिक की सतर्कता से जुर्म नाकाम हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਡ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਡ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਫਿਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। छठोग्राम के राउजान इलाके में कट्टरपंथी तत्वों पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू परिवारों को घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। जान बच गई, लेकिन कई घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। जांच जारी है। देखते पाচ্ছেন बांग्लादेश में रशिया राजदूत ने 1971 के लिबरेशन वॉर में भारत और रशिया के बलिदानों की याद दिलाई। उन्होंने बांग्लादेश से भारत के साथ तनाव कम करने और अपने ऐतिहासिक मित्रों को ना भूलने की अपील की। Thank you. We do not comment the specific relationship which has already been created between the two nations, Bangladesh and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the region also, for South Asia also. This is a geopolitical aspects and implications which negatively will followed by any not resolved oriented test. We read the statement of the South Bloc. We read the statement of the interim government and the foreign advisor of Bangladesh. You know, two sides and the stakeholders, they are trying to find the balanced way so that to reduce this tension as soon as possible. You know, we cannot choose our immediate neighbors. We have the problem, we experience our problem with Ukraine, which is, of course, a matter of concern for us. And, of course, we share our concerns regarding the situation here also, I mean the geopolitical situation. The sooner you... रशिया ने वेनेजुएला से अपने डिप्लोमेट्स के परिवारों, महिलाओं और बच्चों को निकालना शुरू कर दिया है। कराकस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये कदम उठाया गया है।
नवी मुंबई में बुर्का पहने हुए हथियारबंद लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप को दिन दहाड़े लूट लिया। पूरा घटना कुछ ही मिनट में हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई। बुलंदशहर के स्पेशली एबल्ड उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने यूपीएससी में 112वीं रैंक हासिल कर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर बने। ये इधर वाले फोटो में कौन है? इसके इनके फादर हैं। इनके फादर हाँ, ये इनके नाना जी हैं। अच्छा। फ्लोरिडा में क्रिसमस से पहले 1 से 17 साल के 43 लापता बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। ये नॉर्दर्न फ्लोरिडा की अब तक की सबसे बड़ी चाइल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन बताई जा रही है। This video, taken by the Leon County Sheriff's Office in Florida, shows federal agents and law enforcement officers working behind the scenes to rescue dozens of critically missing children. This was the largest missing child operation ever conducted in northern Florida, and we're very proud to say that 43 children will now be home safe for the holidays. According to the U.S. Marshals, through Operation Northern Light, children ranging from 1.5 to 17 years old were reunited with their families. Of those include a 1, 15, and 17-year-old missing out of Okaloosa County. The 1 and 17-year-old were rescued by U.S. Marshals outside Jackson, Mississippi. The agency says one person was arrested for interfering with child custody. The U.S. Marshals say the 15-year-old and the child's abductor were found in Ocala. The adult was arrested and charged with interference with child custody. Greg Legedal, acting U.S. Marshal for the Northern District of Florida, say the children that were saved were critically missing, meaning they were at risk of violent crimes or other serious harms like drugs, sexual exploitation, domestic violence, or crime exposure. During the course of the operation, we ended up recovering children from multiple states, including Tennessee, Mississippi, and Louisiana. We had a lot of these cases that could potentially lead to charges of human trafficking, of interference with child custody, and just a lot of really, really bad situations that these children had found themselves in. Legedal says this wouldn't have been possible without the help of state law enforcement and local agencies, including Pensacola PD. Legedal says the biggest takeaway from this operation is to always know what your child is doing, who they are associating with, and be involved in their lives. Lenice Cameron. आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम्स के यूजर ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम है और भारत की एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत बनाता है। 5, 4, 3, 2, 1, now. -4, 3, 2, 1, now. Taken off.
रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में हजारों युवा सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत ब्लैकलिस्ट होने के बाद बेघर हो रहे हैं। ब्लैकलिस्ट नागरिकों को हाउसिंग, बैंकिंग, नौकरी और शिक्षा जैसे अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने भारत माता की जय नारे लगाने वालों पर पुलिस एक्शन को कानून का दुरुपयोग बताया है। They have shouted slogans Bharat Mata ki Jai. That has become offence under 153A. This complaint ಆದರೂ ಹೆಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ? Shouting Bharat Mata ki Jai is wrong. The crux is they have stood at a particular place and shouted Bharat Mata. Shouted slogan and also threatened people saying that you did not vote for us. I know. But they are the ones who were beaten by the complainants. Exactly. To Not escape. by the complainants. Yes, sir. Not by the Nobody knows who did, and nobody knows who were shouting the slogans. That the police, when they defused it, that itself shows, my lord, the incident is happening. It is not the incident. All right, incident has happened. That is why they have registered 307, sir. That complaint comes the next day. That's correct. Next day that complaint comes as a counter blast. There is no doubt about it. Their complaint is they came before this place and started shouting slogans Bharat Mata ki Jai. If shouting Bharat Mata ki Jai is a crime, can there be any better illustration of abuse of the process of the law? That is not That crime is the story that is built up next day because these were assaulted. Attempt to murder is the allegation against them. Came to know 307 has been registered. 307 is invoked. Why? Because they shouted those slogans. And apparent threat, the next day the story is built up. No, the issue, my lord, that I've been told, my lord, that the even station house diaries reflect the incident, this incident. Why did not the police immediately? They have not done it. Instead of diffusing, they should have taken action They in should have accordance taken with action. law. They probably, if they had taken action, they could have prevented the next crime also. Exactly. When did he go to the station and then write it? In the Without same night. doing anything, they diffused the situation, diffused Bharat Rao. Okay? Last time your lordship passed, my lord. 25/7 One rally. opportunity should be given. That is why it was listed. Yes, sir. They have shouted slogans Bharat Mata ki Jai. That has become offence under 153A. This complaint ಆದರೂ ಹೆಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ? Shouting Bharat Mata ki Jai is wrong. यूपी के बडोही में 70 साल के अब्दुल रहीम ने अपनी पुरखी जमीन स्थायी रामलीला मंच के लिए दान कर दी, जो एकता और सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश है। घंटा लगी था इस समय बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चाचा कल्लन दर्जी द्वारा जो अपना पुराना मकान था हम लोग को रामलीला मंचन के लिए दे दिए हैं, दान दे दिए हैं और गांव वाले बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोल रहे हैं। और 1932 से रामलीला हो रही थी, हमारे यहाँ पर अस्थायी कोई जमीन नहीं थी, अस्थायी मैदान नहीं था रामलीला का, और इस वजह से सब लोग बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्लन चाचा को। कितने घर मुस्लिम है और क्या मुस्लिम लोग भी रामलीला में हिस्सा लेते हैं? हाँ, यहाँ पर मुस्लिम लोग आज भी रामलीला में हिस्सा लेते हैं। कल्लन दर्जी अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कुछ काम लगता है रामलीला का, कुछ बनाने का रहता है लकड़ी का,
तो फ्री में बना के देते हैं। पाकिस्तान के एक राजनीतिक नेता ने दावा किया है कि अगर भारत हमला करता है तो इस्लामाबाद बांग्लादेश का समर्थन करेगा, जिससे कूटनीतिक चिंता बढ़ गई है। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो। कन्नौज में 16 साल की हिंदू लड़की को बंदूक की नोक पर उठाने का आरोप लगा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी बताई जा रही है। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी बहन को ले गए हैं। कौन लोग हैं? अफजान हैं और राजा और सनाब लल्ला तकिया वाली मस्जिद पर रहता है। अच्छा। और जसीम अपनी गाड़ी में लेके गया है। अच्छा। हाँ। कहाँ कैसे क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ था रात्रि 11:56 पे। अच्छा। 17 तारीख को। अच्छा। ये लोग चक्कर लगा रहे थे। हाँ। लेकिन कुछ जाना नहीं। मेरी बहन को तो कृष्ण अवतार गुप्ता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये नगर छिबरा मऊ के ही हैं। ये क्या मामला हो गया है? मामला क्या, एक संज्ञान में मामला है। हमारे हिंदू समाज की बिटिया है, वो कोई मुस्लिम लोग ले गए हैं, उसकी जानकारी के लिए आए थे। तो पुलिस 3 दिन से उसको बता रही है कि मुकदमे लिखो, लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही क्योंकि उन्हें इतना धमकाया जा रहा था, तो वो पीड़ित मुकदमा लिखवा ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए हम लोग साथ आए हैं अपने हिंदू संगठन के लोग, और कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है। हाँ, ये बताया कि वो उसको तमंचे की नोक पे बेटिया को ले गए हैं और कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवा देंगे तुम्हारे छिबरा मुंह में, और तब आएंगे और तब तुमको निपट लेंगे तुमसे आकर के। मेरा सभी से आवाज यही है कि अब साथ होकर के फिर हम मुख्यमंत्री से अपनी बात रखेंगे जाकर के, और इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, और इस पर तो फांसी का भी प्रावधान होना चाहिए। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। एपेक्स न्यूज टीम की तरफ से हमें दर्शकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट।